हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। व्हाट यू मीन टू द jurisdictions of Supreme Court here? The scope of power of Supreme Court to be heard and decided to case is called to the jurisdictions of Supreme Court. Has three types of jurisdictions, namely original, appellate, and the advisory. So let's now examine the three jurisdictions here. The first here, original jurisdictions. There is original jurisdictions here. There are contained case which is a fall with the exclusive jurisdictions of Supreme Court. It means that all such a case begin or originate in a Supreme Court only. It is also mean that such a case cannot be initiated in any other court. This case is a departure that come under original jurisdictions are given below. The first year, departure between two government of India on the one side and one or more state on the other side. And next year, departure of between to the government of India and one or more state one side and one or more state on the other side. A second year, departure between two or more state. The Supreme Court has been to invested with a special power in the enforcement of fundamental right. In this connection, it has the power to issue direction or writs and the rights. And there is third here, the case under public interest is a litigations, means PIL. There are public integrated litigation. There PIL can also be heard directly. This is on the extra constitutionally practice. There is no mention of PIL in the constitution. The next year, appellate judications. The power of the Superior High Court to be heard and decided appeal against the judgment of a lower court is called to the appellate judication. The Supreme Court has a vested appellate the judication it here appeal against the judgment of the High Court. Thus, it is the highest and the final court of appeal. If one of the parties to be discharged is not satisfied with the decision of High Court, one can go to the Supreme Court and fill on appeal. The appeal can be filled in a civil, criminal, and constitution case. There is a most important appellate judication here. There is the appeal can be filled of civil, criminal, and constitutional case. The first here, appeal in a civil case here. The appeal in a civil case, the rupture of relating to the property, marriage, money, contract, and service sector are called civil case. If a civil case involve a substantive point of law of public importance needing an interpretations of constitution or law, on appeal against to High Court, decision can be made to Supreme Court. Earlier, the financial limit of such a civil case was 20,000, but now according to the 30 amendment of 1972, there is no minimum amount for taking a civil appeal to be Supreme Court. If a substantially question of interpretations of law or constitution is involved, appeal may be made against decision of High Court. The next year, appeal in a criminal case. On appeal may be both to be a Supreme Court against High Court decision in a criminal case in a number of situations. Firstly, if a High Court set aside an appeal or an order of acquittals passed by a lower court and awarded death sentence to be assumed, he may be bearing to appeal to be Supreme Court by right. And secondly, here, appeal can be also be made to be Supreme Court if the High Court withdraw a case from a lower court to itself and declares the accused and guilty and awarded death sentence. In the situation, also appeal can be made as a matter of right and without certificate from High Court. The appeal in a case other than these two categories may also be both to be Supreme Court, provide the High Court a grant
a certificate that the case is a fit the appeal to the Supreme Court. And next, in case where the High Court refused to certify the case to be fit for appeal to the Supreme Court, one may be seek especially leave to the appeal from the Supreme Court itself. The Supreme Court may be a grant such a special leave in its discretion, but only in a rare case. The next year, appeal as a constitutional case. A constitutional case is neither a civil dispute nor a concerning a crime. It is a case arising out of different interpretation of constitutions. The mainly regarding the fundamental right in such a constitutional case on appeal can be taken to Supreme Court. Only if a High Court certifies that a matter to the rupture involved to the substantially question of law. If the High Court denies a certificate of fitness to the appeal to be Supreme Court, the Supreme Court can use its discretion and grant especially leave to be appealed to itself in any case it deems fit. The next year, advisory adjudications. Advisory adjudication here, the power impel court as a right to be give advice if you solve under advisory of adjudications. And the President of India may be refer any question of law or public important to the Supreme Court for its advice. But Supreme Court is not to be bound to give advice in case the advice or the opinion of the court is sent to be President. He may or may not accept it. The advice of the court is not to be binding on the President so far whenever the High Court has given it is the advice the President have accepted it. The court refused to give its advice on the question whether a temples existed at the spot where the Babri Masjid was built at the Ayodhya. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, यानी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ तक जो है विस्तृत है और इसका क्या अधिकार क्षेत्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए। कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे को सुनने और फैसला करने के अधिकार या शक्ति को न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के अधिकार क्षेत्र होते हैं, जैसे आरंभिक हो गया, मूल हो गया और अपील संबंधी मंत्रागण संबंधी अधिकार क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र जो है काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके बारे में हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है आरंभिक अथवा मूल क्षेत्र अधिकार। देखिए आरंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार का अर्थ क्या होता है। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में ही आते हैं, यानी कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जो उच्च न्यायालय के क्षेत्र में ही आते हैं। इससे अभिप्राय यही हुआ कि ऐसे मुकदमे केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही आरंभ होते हैं, अर्थात जिन्हें पहली बार केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है तथा वे किसी अन्य न्यायालय में दायर नहीं किए जा सकते हैं। मूल्य न्यायाधिकार में आने वाले मुकदमे इस प्रकार हो सकते हैं। पहला अगर हम बात करें तो यही है कि ऐसे मुकदमे जिन्हें एक और केंद्रीय सरकार तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य सरकार हो, तो ऐसे मुकदमे जो हो सकता है। ऐसे मुकदमे जिनमें एक और केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त एक या एक से अधिक राज्य सरकार हो और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य सरकार हो, तो ऐसे मुकदमे में आती है ऐसी प्रॉब्लम। ऐसे मुकदमे जिनमें 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच विवाद हो, तो मौलिक अधिकार के संरक्षण तथा लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके लिए उसे निर्देश अथवा आदेश देने का अधिकार भी सम्मिलित होता है। जनहित याचिका यानी PIL होता है जनहित याचिका भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है, और यह एक ऐसा अधिकार है जो संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अपीली संबंधी अधिकार। देखिए अपील करने के अंतर्गत क्या अधिकार है। किसी भी निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को भी किसी उच्च अदालत द्वारा सुनने की शक्ति के अपीली संबंधी न्यायाधीश कहा जाता है, यानी न्यायाधिकार कहा जाएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई अदालत ने अगर आपका फैसला सही नहीं दिया है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी अपील कर सकते हो और जो है न्याय प्राप्त कर सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय का अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र बहुत ही विशाल होता है
और यह उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। यानी उच्च न्यायालय ने अगर हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है लेकिन आप उसे संतुष्ट नहीं हो तो इसको जो है आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाके अपील कर सकते हो। अंततः सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील अंतिम अपील मानी जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ केस रेयर होते हैं जो अपराधी के जगत के होते हैं, जिसमें किसी जान की होती है, तब जाके वो राष्ट्रपति के पास जाता है। नहीं तो सभी जो निर्णय होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय ही माना जाता है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। और यह अपील जो हो सकती है या तो दीवानी हो सकती है, फौजदारी हो सकती है या संवैधानिक मामलों से संबंधित हो सकती है। तो ये हमारे लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये सोच रहे होंगे कि दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मामले होते क्या हैं, तो चलिए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि दीवानी, फौजदारी मामले होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है दीवानी मामले। कहते हैं दीवानी मामले के अंतर्गत जो होता है संपत्ति, विवाह, धन, समझौता या किसी सेवा संबंधी झगड़े के मामलों में दीवानी मुकदमा कहलाता है। यदि किसी दीवानी मामलों में लोक महत्व का कोई ऐसा प्रमुख कानून बिंदु है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वांछनीय है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पहले ऐसे दीवानी मामले की वित्तीय सीमा केवल 20,000 रुपये तक ही थी, परंतु 1972 में किए गए संविधान के तीसरे संशोधन के अनुसार अब सर्वोच्च न्यायालय में की जाने वाली दीवानी अपीलों की लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है फौजदारी मामले। कहते हैं कई परिस्थितियों में फौजदारी मामले ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि कोई उच्च न्यायालय निचली अदालत द्वारा दोष मुक्त घोषित किए गए व्यक्तियों को मृत्युदंड सुना दे तो ऐसे व्यक्ति को इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का पुण्य अधिकार है। यानी उच्च न्यायालय में इस मुकदमा का सुना जाना भी न्याय उचित ही माना जाएगा। यदि उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मुकदमे को अपने यहाँ मंगा ले और उस व्यक्ति के दोषी करार देते हुए मृत्युदंड सुना दे तो ऐसे मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसी स्थिति में भी अधिकार स्वरूप और उच्च न्यायालय से बिना किसी प्रमाण पत्र के अपील दायर किया जा सकता है। उपरोक्त दो स्थिति के जो है अतिरिक्त भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि मुकदमा जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है तो वो अपील की जा सकती है। यदि कोई जो है उच्च न्यायालय के किसी मामलों में यह प्रमाणित करने से इनकार कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है तो संवैधानिक व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति प्राप्त कर सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार की विशेष अनुमति बहुत ही कम मामलों में देता है। यानी बहुत ही कम मामले हैं जहां पर इस तरह की जो है सुनवाई किया गया है। उसके पश्चात अंतिम जो आती है हमारे समक्ष संवैधानिक मामले। देखिए संवैधानिक मामले न तो दीवानी झगड़े होते हैं और न ही फौजदारी अपराध होता है। यह ऐसा मुकदमा है जिसके कारण संविधान के विभिन्न प्रकार के व्याख्या करना होता है, विशेष तौर पर मौलिक अधिकारों से संबंधित व्याख्या अथवा अर्थ निकालना। ऐसे मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में केवल तभी हो सकती है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि मामला संवैधानिक सवालों से संबंधित है। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करने से मना कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने योग्य है तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्वेच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे किसी भी मामले में जिसे वह उचित समझता हो अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। उसके पश्चात अंतिम जहाँ है फैसला होती है मंत्रागण संबंधी न्यायाधिकार। देखिए उच्च न्यायालय की सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है जिसमें मंत्रागण संबंधी न्यायाधिकार होता है। इस अधिकार का अर्थ यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि उसे परामर्श मांगा जाए और तो मंत्रागण संबंधी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी कानून संबंधी अथवा लोक महत्व को प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग कर सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। दूसरी ओर यदि परामर्श या मत भेज दिया जाए तो उसे मानना या न मानना राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी नहीं होते हैं। आज तक जब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति ने उसे सदैव ही स्वीकार ही किया है। यानी कभी भी इसको जो है मना ही नहीं किया गया है। अयोध्या में जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उस स्थान पर पहले मंदिर था या नहीं, जब इस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी गई तो उसने अपनी राय देने से इनकार कर दिया। Our next topic is the most important gradients of the Constitution. What do you mean the gradients of the Constitution here? There is a safety. The safety is a gradient of the Constitution. The Constitution is the India of
supreme law of the land and Supreme Court. It is the interpret and gradient. It is does not allow to the executive or parliament to the violate as any provision of the constitution. It can also review any action of the government which is the alleged volatiles and provision of the fundamental right. This power of the Supreme Court is called judicial review, about which we shall study later. If it is a find violations of any provision of the Constitution, it may be declared the concerned law of ultra vires or nulls and their void. It is on the basis of this power of judicial review of the Supreme Court that it is called to gradients of Constitution. It is also called a champion of liberties and is a watchdog of democracy. In this context, the role and the function of the Supreme Court is well and comprehensive. The next here, protect and fundamental right. There is a most important topic here. The Supreme Court has a concurrent is a right, and with the High Court it is issue direction or order with the right to be a enforcement of fundamental right. And these are the nature of the rights of their habeas corpus and mandamus as the provisions and certiorari and the quel warranto. This is the way to the make of Supreme Court is a protect and guarantor of the fundamental right. This idea that in a case of the violation of law or right, the court may be issue direction for a compliance with their constitutions. Thus, the citizens of India are ensured as a for a fundamental right are concerned. The Supreme Court has the right to be declare a law passed by the legislatures null and the void if the incurrences is upon our fundamental right. It has rejected maybe legislations which is a volatile fundamental right. This so how to Supreme Court has a way serve as the guardians of fundamental right. The here show the which mean that it is an order issued to the lower court of as a functionary of the state to be take a step to the restore the right of the people. There is a most important here. And next is review of the oval judgment. If the Supreme Court discover that there are some new fact or evidence, or if it is certified that some mistake or error took place in the preview decision, and it has a power to review their case and alter it is a preview discussion. This is generally done when a review a petition of failed. The normally review are done by a bigger bench is than the one that originally decided the केस। दोस्तों, जैसा कि आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ है संविधान के संरक्षण, यानी वोटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते हैं संरक्षण किस प्रकार संविधान की संरक्षण होती है। देखिए, कोई भी अगर रूल रेगुलेशन बनती है, जब तक हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे उस रूल रेगुलेशन का कोई वैल्यू कोई अर्थात नहीं रह जाएगा। इसलिए संविधान ने ये प्रावधान किया गया है कि जो कानून है उनको कैसे जो है संरक्षण प्रदान किया जाए। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है और सर्वोच्च न्यायालय इसका जो है व्याख्यात्मक तथा संरक्षक भी होता है, यानी सभी कानूनों का रक्षक जो होता है को ही माना जाता है। कहते हैं यह कार्यपालिका या विधायक को इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने देता है। यह सरकार के किसी भी कार्य का जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो न्यायिक अवलोकन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक जो है पुनरावलोकन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगामी पाठों में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। यदि सर्वोच्च न्यायालय के लगे कि संविधान में किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो वो जो है संवैधानिक कानून और असंवैधानिक अथवा अवैध घोषित भी कर सकता है। यानी अगर उल्लंघन के मामले में ये जो है असंवैधानिक और जो है अवैध घोषित करने का भी अधिकार इसको पूरा प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के इसी अधिकार का आधार इसे संविधान का संरक्षण भी कहा जाता है। इसे स्वतंत्रता का सार्थक और लोकतंत्र का रखवाला भी कहा जाता है। यानी जो कहते हैं हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है स्वतंत्रता का समर्थक भी करता है और लोकतंत्र का ये रखवाला भी है। इससे संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का कार्य विशाल एवं विस्तृत हो सकती है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। कहते सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को निर्देश देने, आदेश देने तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। यह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध और अधिकार पुच्छ उत्प्रेक्षण लेख के रूप में हो सकती है। यही आदेश सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार का संरक्षण तथा प्रहरी बना देता है। यदि किसी कानून का उल्लंघन होता है अथवा अधिकार का हनन होता है तो जो है न्यायालय संवैधानिक नियमों का पालन का आदेश भी दे सकता है और इस प्रकार भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। यानी भारत में अगर मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन होना किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। यदि विधायक द्वारा पारित की गई कोई भी कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उसे अवैध घोषित कर दे और इसने ऐसे कई कानून रद्द भी किए हैं जैसे मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट की पावर ही कह सकते हो कि एक तरह से मौलिक अधिकारों का संरक्षण मात्र करता है और इसका करना भी दायित्व होता है। ठीक है, इसमें कोई कानून रद्द भी किए हैं और जिसमें मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था, इससे ही स्पष्ट होता है कि किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य किया है। यहाँ पर रिट वर्ड आ रहा है। रिट वर्ड मतलब होता है याचिका। देखिए रिट वर्ड जो आ रहा था, ठीक है, WRITS आ रहा था, रिट्स आ रहा था, इसका मतलब था कि याचिका। यह एक आदेश है जो किसी निचली अदालत या राज्य के अधिकारियों को दिया जाता है ताकि वह लोगों के अधिकार वापस दिलाने के लिए जो है उचित कार्रवाई कर सके। उसके पश्चात हमारा पॉइंट आता है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का भी सुप्रीम कोर्ट को जो है पूरी छूट है। कहते हैं यदि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ नए तथ्य अथवा नए प्रमाण मिले, यह विश्वास हो जाए कि उसके पुण्य निर्णय में कोई भूल हुई है, तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पूर्ण निर्णय पर पुण्य विचार करे और अपने निर्णय को बदल भी सके। यह प्राय तब किया जाता है जब कोई जो है पुण्य विचार के लिए याचिका दायर करता है। सामान्यतः पुण्य विचार करने वाली पीठ पुण्य निर्णय देने वाली पीठ से बड़ी होती है। दोस्तों ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसके विषय में हमने चर्चा किया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के हर एक पहलू पर चर्चा किया। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला वीडियो देखना मत भूलना, वो भी बहुत आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने का भी कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश में ही कामयाबी छुपी होती है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको जो है चैनल को सेव करना भी आपका दायित्व बन जाता है। अगर सेव नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा और प्लस बाद में अगर यूट्यूब पे अगर टॉपिक के रिगार्डिंग रिसर्च करोगे तो शायद आपको त्रिपान स्टडी सेंटर का वीडियो प्राप्त ना हो, क्योंकि पहले वो आएंगे जो पहले ही यूट्यूब पे जो है सिलेबस मौजूद होगा। ठीक है, इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो इस पर जाओगे जहाँ पर सारे जो है वीडियो आपको नजर आएगा, यानी जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आपको वीडियो का वहाँ पर जाओगे इसके चैनल पे तो यहाँ पर सारे वीडियो का ऑप्शन आएगा। जो टॉपिक आपके लिए रहेगा, जो आपको जानना है, उस टॉपिक को सेव करके जो है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हो।